We are starting with the Supreme Court, High Court, and the subordinate court now. So the very first question is the removal of the judiciary, be it Supreme Court or High Court, is mentioned in the Constitution. The process of the removal is mentioned in the Constitution. True, false? True. हाँ, रिमूवल मेंशन है और प्रोसेस नहीं है मेंशन. So the answer is false, because I asked that the process of the removal is mentioned. So it is not mentioned. It is provided by the Judges Act, Judges Inquiry Act 1968. Okay, and the minimum age for the minimum age is mentioned in the Constitution for the judges. False. False, yes. And then what are the conditions or qualifications for the Supreme Court judge? वो एक एमिनेंट जूरिस्ट हो सकते हैं और ये अपने एमिनेंट जूरिस्ट हो सकते हैं, एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, और तीसरा है कि वो या तो जज हों किसी हाई कोर्ट के 5 इयर्स के या एडवोकेट हों 10 इयर्स के लिए किसी हाई कोर्ट में. और हाँ, यही है. Okay, and age of the 35 is required to be the judge. True or false? False. False. Correct. So it is false. There is nothing regarding the age is mentioned. After that, tenure is fixed. True or false? False. Correct. False. Correct. Is not fixed, though they can't be removed by president anytime. Okay. So any other questions from the Supreme Court? Who appoints the Supreme Court judges? President. President, yes. And till date, only 3 judges are impeached so far. True, false? False. False. Why so? No judge is impeached. No judge is impeached. Correct. Okay, who has the power to increase the number of judges in the Supreme Court? President. Parliament. By Parliament. law. हाँ, Parliament. So we need simple majority or special majority for it? Simple. Simple majority. Simple. Correct. Simple or special? Simple. Simple, yes. So who can increase the number of judges in High Court? President. Correct. Who appoints the ad hoc judge? CJI. Chief Justice of India. हाँ जी. और who appoint the retired judge, like who asked him to come again? CJI. Justice. And acting Chief Justice? President. Correct, sir. Okay, जो retired judge can be appointed again only after the previous consent of the president. True or false? True. True. Correct, true.
In short, just brief the process of the removal of the Supreme Court judge, because it is as same as the High Court, but anyone can just brief the Supreme Court के judge का removal process. तो रिमूवल में फर्स्ट पहले 100 मेंबर्स जो मोशन होगा वो साइन होना चाहिए, 100 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 50 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, और फिर वो चला जाएगा स्पीकर या फिर चेयरमैन के पास, जहाँ भी जिस भी हाउस में इनिशिएट हुआ होगा, और फिर वो उनकी मर्जी है, दे कैन रिफ्यूज और एडमिट इट। फिर आफ्टर दैट वो 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। उसके बाद उस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस हो सकते हैं या जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और थर्ड एनी जूरिस्ट। और फिर उसके बाद अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो फिर वो मोशन पास करेंगे पार्लियामेंट से विद स्पेशल मेजोरिटी, और फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास और फिर वो ऑर्डर पास कर देंगे। Correct. And what makes the Supreme Court independent? What are the provisions which shows that Supreme Court is independent? Article 142, और फिर they can appoint themselves, और Wait, they can appoint themselves means they can appoint of themselves, but they can't appoint themselves. No, president will be just appointing them. correct. Then what more? हाँ, उनकी जो सैलरी है वो चार्ज होगी कंसोलिडेटेड फंड पे, और उनकी कोई भी जो सर्विसेज होती है ना वो फिक्स होती हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते उनके टेन्योर के दौरान। और उनकी रिटायरमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो बैन है, और सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से अंडर आर्टिकल 50, और उनका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में जो है मतलब जो ये है मिक्स है कि जजेस भी हैं और प्रेसिडेंट भी है वो, और उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनका रिमूवल काफ़ी मुश्किल है, और ये सब है। Except for the impeachment process. Repeat it. मोड ऑफ अपॉइंटमेंट उनका काफ़ी अच्छा है, और उनको टेन्योर की सिक्योरिटी है क्योंकि उनका रिमूवल काफ़ी मुश्किल है, और उनका जो सैलरी है वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड पे, और रिटायरमेंट प्रैक्टिस बैन है, और एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से उनके अलग हैं फंक्शंस, मतलब सेपरेट किया हुआ है अंडर आर्टिकल 50। Okay, there is one question on this, that their jurisdiction cannot be increased but can be curtailed. True, false? False. False. And why so? Opposite statement. Positive. Okay, so Parliament cannot curtail but can increase their jurisdiction, and then they are separate also. उनका जो फंड रहता है वो सब CFI होता है. अच्छा, if anything is under CFI, so what it means, it can be discussed or not? Yes, it can be discussed. But non-votable. Okay, उस पर वोट नहीं हो सकता है. ठीक है. Any other question? जैसे एक उसकी जो सीट होती है वो कौन फिक्स करता है सुप्रीम कोर्ट की सीट को? Chief Justice of India. Yes, but with the approval of the president, that seat can be changed. ठीक है, वो चेंज की जा सकती है with the approval of the president. And what about the that वो जो bench होती है उसमें how many judges are there in the maximum bench and the minimum bench?
मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में मिनिमम 5 चाहिए ना, और वैसे 3 और 2 भी हो सकते हैं। 2 होते हैं डिसीजिव केस में, भूल गया मैं, सॉरी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं, प्रेसिडेंशियल जैसे एडवाइजरी वाले जो होते हैं 143 के प्रोविजन में जो आते हैं, वो सभी डेल्ट बाय 5 जजेस, रेदर 3 जजेस होते हैं। एंड वैसे मैक्सिमम बेंच आज तक किस केस के लिए बैठी थी? मैक्सिमम बेंच केशव नंदा भारती में 13 जज बेंच। यस एग्जैक्टली। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस वर देयर, 13 थे एक बेंच में, एंड वो केशवानंद भारती केबीसी 1973 वाले केस के लिए बैठी थी। ओके, कोई और क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट से? हाँ, एक आर्टिकल ये 142 है जो सर ने मेंशन किया था, वो क्या है? जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आपको केसेस फाइल करने होते हैं या डिक्री लगानी होती है, ठीक है, तो ये इसके लिए होते हैं, सो दैट सुप्रीम कोर्ट कैन स्टार्ट द केस। हाँ, करेक्ट। ये जो 142 आर्टिकल है ना, ये बहुत पावरफुल आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के लिए। जो वो भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुआ था ना, उसमें पार्लियामेंट ने कंपनसेशन नहीं दिया था उन्हें, विक्टिम्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के डिसीजन को वो कर दिया था, सुपरसीड कर दिया था, और फिर उनको वो कंपनसेशन दिलवाया था। और ये जो मतलब इसमें क्या होता है कि ना, आप किसी भी, सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ के ऊपर लॉ बना सकती है, और मतलब काफ़ी पावरफुल आर्टिकल है उनके लिए। On this, I have a question that Article 142 forms the basic structure. True, false? फॉल्स। Just think again. Article 142 forms the part of the basic structure. जुडिशरी के कोई भी आर्टिकल्स बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट ही है। गौरव, कैन यू प्लीज रिपीट, क्या बोला आपने? जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर आर्टिकल 142 इज अंडर बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। 32 इज ऑल्सो अंडर बेसिक स्ट्रक्चर, 136 इज ऑल्सो देयर। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, दे फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बट इफ आई से समथिंग लाइक कि इमरजेंसी इज बेसिक स्ट्रक्चर, ट्रू और फॉल्स? मीन्स इमरजेंसी के जो प्रोविजंस होते हैं 352 टू 360, ये सभी मतलब 8 के 8 आर्टिकल्स हैं, ये आएंगे सभी बेसिक स्ट्रक्चर में। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। ओके, तो ये याद रखना, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर की अगर कभी मतलब बेव एक्ट में ना, वहां पे स्पेशली मेंशन रहता है 32 का, 142 का। तो 142 एज यू सेड स्पर्श की बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल आर्टिकल है। तो जस्ट रिमेंबर, क्योंकि 142 आया हुआ है अभी रिसेंटली, कोई 2-3 साल पहले एक बार आया था, 19 में आया था, 19 में आया था शायद, ठीक है। तो दे कैन आस्क लाइक, तो थोड़ा याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, हमें पीवाईक्यूज भी करने हैं फिर शायद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, तो थोड़ा सा फास्ट जो भी क्वेश्चंस हैं। रिट जुरिस्डिक्शन कोई बता सकता है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कोई ब्रीफ में, बस जल्दी से। रिट जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट के पास है 226 में। तो ये इससे क्या होता है, गारंटी करते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को। और इसमें हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं इफ अगर हमारा वायलेट होता है तो, और हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। और इसमें 5 मेंशन है: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी और कोवरेंटो। कोवरेंटो, ठीक है, तो ये 5 की 5 है। एंड सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू एक्सरसाइज द रिट जुरिस्डिक्शन। ट्रू फॉल्स? फॉल्स।
Okay, then what would be the correction of the same statement? वो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं पहले, अगर उनको मना नहीं करेंगे तो। You are saying कि अगर सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर दे तो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, राइट? You are saying this? नहीं, मना तो करेंगे नहीं, लेकिन वो बोल सकते हैं ऐसा कि तुम पहले हाई कोर्ट के पास जाओ। अगर फिर ऐसा बोल देंगे कि आप लोग हाई कोर्ट के पास जाओ, तो फिर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कैसे होगा? है ना? मतलब ओरिजिनल क्यों बनाया गया उसे? अगर ये तो बात जनता भी जानती है कि हम हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, सुप्रीम के पास भी जा सकते हैं। तो अगर वो सुप्रीम के पास सीधा गए, मतलब दे डोंट वांट टू गो टू हाई कोर्ट फर्स्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या है? सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वो मतलब यू कैन कंसीडर कि वो ग्रांटर है फंडामेंटल राइट्स की, और लाइक द सुप्रीम बॉडी है, तो इन दैट केस इट कांट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिसडिक्शन, वेयर एज हाई कोर्ट कैन। ठीक है, उसके पास कैन और कैन नॉट दोनों वाला है। ठीक है, वो आराम से रिफ्यूज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, कि वो चाहेंगे तो वो केस लेंगे, अन्यथा वो नहीं लेंगे, बट सुप्रीम कोर्ट तो मना कर ही नहीं सकता, उन्हें केस लेना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन क्या होता है? एडवाइजरी में जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस करता है किसी भी मैटर पे, जो प्रेसिडेंट उन्हें बोलेगा कि मुझे एडवाइस करो, और वो उन पे कंपल्शन है एडवाइस देना, और फिर लेकिन प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है कि वो उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। परफेक्ट। ठीक है, तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का अनदर नेम इज द कंसल्टेटिव जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज अंडर द आर्टिकल 143। जो प्रेसिडेंट है वो खुद चल के ओपिनियन मांगते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसे ओपिनियन देगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आके ही ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं आपको ओपिनियन देता हूं तो आप सुनो मुझे। नो, द प्रेसिडेंट विल आस्क हिमसेल्फ, देन ओनली उसी के इनिशिएटिव पे सुप्रीम कोर्ट कैन प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ एडवाइस। ठीक है, उसके बाद में दो टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक इंपॉर्टेंस, या फिर वो चीजें जो कि मतलब लाइक किसी लॉ से ओरिजिनेट हुई है, या फिर वो चीजें जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन है। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो है कंपल्सरी है, और पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला दैट इज लाइक वॉलंटरी है। तो लेकिन दोनों ही चीजों को मानने के लिए द प्रेसिडेंट इज नॉट लाइबल एनी टाइम। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के आज तक ये देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि फॉर द फर्स्ट टाइम 1951 में एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज किया गया था। तो आज तक इतिहास में लगभग 15 बार ऐसा हुआ है कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन दिया गया है, तो उस केस में प्रेसिडेंट ने उनसे हेल्प ली है उस केस में। ठीक है, व्हाट इज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में मतलब उनके पास ही केस जाएगा, वो सिर्फ उनके पास, और उसमें 3 ही हैं, एक तो सेंटर और किसी स्टेट के बीच में, और किसी स्टेट और स्टेट के बीच में, और सेंटर और 1 और मोर स्टेट के बीच में। Perfect. And what about the appellate jurisdiction? Highest appeal. Correct. मतलब हम सिविल, क्रिमिनल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी केस में हाईएस्टली उसके पास जा सकते हैं। और एक इसमें है अपील्स बाय स्पेशल लीव। इसमें है कि अगर फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है अपने मतलब जजमेंट से, और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया, उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो वो स्पेशल लीव एक ऐसा दिया गया है कि तो उसमें क्या कहते हैं, दोबारा से वो मतलब जा सकते हैं, लेकिन उसमें ये एक्सेप्शन है मिलिट्री कोर्ट्स, बाकी सब में जो भी कोर्ट्स के होंगे वो दोबारा आ सकते हैं। Perfect. And what about the court of record? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में जो भी उनके जजमेंट्स हैं और वो सब है, वो सब वो रिकॉर्ड करके रखा जाता है। और दूसरा उसमें आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसमें है सिविल और क्रिमिनल। सिविल में होगा मतलब हम अपनी मर्जी से किसी डिसीजन को डिसोबीडियंस दें तो वो सिविल उसमें आएगा, और क्रिमिनल में कोई भी फ्रॉड करें हम, या मतलब कुछ भी एक्सट्रीम चीज करें तो वो उसमें आएगा।
ओके एंड जस्ट अ स्टेटमेंट, सपोज कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का कंटेम्प्ट हो चुका है, ठीक है, तो लाइक हाउ द थिंग्स वुड गो अबाउट, लाइक सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा बीच में या सुप्रीम कोर्ट को कोई मतलब नहीं है, दैट विल वर्क देयर, एंड जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो आएगा अपने कंटेम्प्ट को फाइट करने के लिए, व्हाट वुड बी द सिचुएशन? हाँ, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए बोल सकता है, वो सारी कोर्ट्स के लिए। एग्जैक्टली, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, मतलब थिंग even High Court has the power of contempt. दैट इज करेक्ट, उसके पास भी होता है, बट माई क्वेश्चन वॉज कि अगर सपोज सबऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, सो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट को कोई भी लाइक ना मतलब उससे कोई मतलब नहीं होगा, दैट विल वर्क इन देयर ऑन स्फीयर, एंड द हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसका भी रिस्पेक्टिव कंटेम्प्ट हुआ है, सो दैट विल टेक देयर स्टेप। तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा समझता है जैसे इट इज समथिंग लाइक कि अगर उन दोनों का कंटेम्प्ट हुआ है तो दैट इज इक्वल टू द सुप्रीम कोर्ट्स कंटेम्प्ट, so that will come into the scene and will take the cause for the good. Okay, and court of record is the Indian innovation, true or false? False. False. Why? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये। Constitution में mention है। Okay, anyone else? It is a part of convention. It is a part of convention. Okay, anyone else? Okay, can anyone tell me क्या question exactly? What was the question? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जुडिशरी जो है अपना, या सुप्रीम कोर्ट जो है अपना, वो इंडिया में ही इन्वेंट हुआ है और इंडिया का ही खुद का इनोवेशन। माय आंसर इज आई डोंट नो दिस। ओके सी, ऐसे तो फिर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का भी आर्टिकल है, वी हैव द पार्ट नंबर 3 एंड देन आर्टिकल फ्रॉम लाइक 14 से लेके 35 34 तक, तो फिर तो वो भी वो हुआ, मतलब हमने उसे यूएसए से बोरो किया ना, दैट इज टेकन फ्रॉम द बिल ऑफ राइट का जो सिस्टम है उससे लिया गया। सेम वाइज जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, ये कोई इंडिया का इनोवेशन या ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है, एंड देन इसको हमने अपने आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किया 129 में, ठीक है, मतलब जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये ऐसे इंडिया का कोई इनोवेशन या ऐसा नहीं है कि इंडिया का इनोवेशन होना मीन्स समथिंग इज डिफरेंट, इंडिया इज ओनली हैविंग दैट प्रोविजन सो फार, है ना, दूसरे देशों के पास ऐसा कुछ नहीं। सुनो, अलॉन्ग विद दिस जो प्रेरोगेटिव रिट्स है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको डाला है, हबीस कॉर्पस और ये सब चीजों को हमने अपने 32 में 226 में इंश्योर किया, दैट डजंट मीन कि वो इंडिया का है ना, हमने उसे यूके से वी हैव बोरोड दैट कॉन्सेप्ट। सो जस्ट लाइक बी वेल वर्स्ड विद टू थिंग्स कि इंडिया का इनोवेशन होना इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज की होने, दोनों चीजें अलग। ओके, पीआईएल जो फाइल होती है वो इंडियन इनोवेशन है? नो नो, नहीं। वो कनाडा का है, कनाडा या यूएस, शायद कनाडा का है। हाँ, यूएस। यूके का है। नहीं यूके का तो नहीं है यार, नहीं, नो नो नो, या तो हाँ यूएस का हो सकता है बट यूके का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, फिर एक और क्वेश्चन है, जस्ट तो देख लाइक लेंगे। यू वर सेइंग समथिंग, गौरव प्लीज ऐड। मैं कह रहा था कंफर्म नहीं तो देख लेंगे, वी विल लुक एट इट। एक बार अभी चेक कर लो, जीरो आवर इंडिया का इनोवेशन। नो 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 नो, जो जीरो आ गए वो पार्लियामेंट्री का इनोवेशन है ना, तो हाँ वी कैन से, मतलब वो इंडिया का हो सकता है। हाँ, PIL is from US. ओके, थैंक यू। दिस इज फैक्ट कि जीरो जो है वो इंडियन इनोवेशन है, फर्स्ट टाइम इंडिया में ही यूज हुआ है, बिकॉज वही है ना, वो एंड इट इज पार्लियामेंट, नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। that is not mentioned, correct. And Sharma, you were saying something, like you were saying something. हाँ, I was saying that PIL was originated from the US. US, yeah, I told ना कि वो यूके से नहीं हुआ, इतना याद था मुझे अच्छे से, यूएस या कनाडा में आई वाज कंफ्यूज्ड। ओके ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू, whatever you know regarding judicial review in brief, please tell. According to Article 13, any law which is against any fundamental right or basic structure
comes under the judicial review. Okay, just tell me one thing. Why we need judicial review? Means अगर judicial review नहीं होता तो क्या होता? फिर इंडिया नहीं होता, बेसिक कैरेक्टर चेंज हो जाता. Okay. More to add anything? It would have been the supremacy of the parliament. They could have done anything and any way they thought, like it was happening in 1970s before the Keshwaran Bharti case. Then it wouldn't be the sovereignty of the constitution. It would be sovereignty of parliament like UK. And our constitution would have translated into unwritten constitution. I would not say unwritten constitution, but the nature of the constitution would have been severely changed according to whims and fancies of the ruling parties and the thinking of the ruling parties. Okay, so whatever you have said is totally correct. बस एक पॉइंट जो था, ठीक है, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑरल हो जाता. Someone said this point ना, तो सी इसका रिलेशन नहीं है. जुडिशियल रिव्यू होना मतलब सी जुडिशियल रिव्यू है इंडिया के पास, ठीक है, तो हम लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं. दोनों चीजें आपस में कोरिलेटेड नहीं है कि दैट विल एग्जिस्ट तो अनदर थिंग विल एग्जिस्ट. बोथ हैव देयर ओन स्फीयर. ओके, दो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, बट यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसा मतलब चीजें हैं वो ट्रांजिशन फेज में है, ठीक है. वहीं पे यूएस है तो यूएस के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है, पीईएल नहीं होता है. देन अगेन वहां पे जज की सुप्रीमेसी है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी. इफ वी कंपेयर यूके एंड इंडिया, तो यूके के पास देयर इज अ पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी, इंडिया में वो नहीं है. मतलब थिंग्स आर डिफरेंट. ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब इंडिया के पास जुडिशियल रिव्यू है तो ऑब्वियसली उसके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही होगा, ठीक है. ओके, सो देयर इज वन स्टेटमेंट, जुडिशियल रिव्यू इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ट्रू फॉल्स? फॉल्स. ओके, ठीक है. उसके बाद में और कुछ है सुप्रीम कोर्ट में? एनीवन वांट टू आस्क? Can anyone differentiate between different types of writs? Just repeat your question, please. I'm saying I want to get clarity about different types of writs. Writs you are asking na, habeas corpus and all those writs you are saying, right? हाँ. डाउट क्या उसमें आपको? मतलब जैसे हबीज कॉर्पस है, ठीक है, तो हबीज कॉर्पस इज समथिंग लाइक जैसे रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, तो उसके अंदर आपको कोई डिटेन कर रहा है तो देयर शुड बी अ स्पेसिफिक रीजन फॉर डिटेनिंग यू. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंडामस होता है, मैंडामस का मतलब क्या होता है कि टू कमांड, आपने किसी को कमांड दिया कि डू योर वर्क प्रॉपरली, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिसिटी हाउस हो गया, वाटर बोर्ड हो गया, तो यू कैन आस्क कि व्हाई यू पीपल आर नॉट वर्किंग. इन केस नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे बेसिक मीनिंग तो सबको पता है, बट वहाँ पे कंफ्यूजन होता है बिकॉज वहाँ पे जैसे प्रोहिबिशन है, स्टैट्यूटरी है और मैंडामस है, तो वहाँ पे किस में तो कोर्ट्स के खिलाफ यूज होगा, किस में एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज के खिलाफ यूज होगा, ऐसा. यस, वो थोड़ा सा आपको याद करके चलना पड़ेगा ना. जैसे हबीज कॉर्पस है वो दोनों के अगेंस्ट में यूज हो सकता है, ठीक है, वो प्राइवेट के अगेंस्ट भी है, वो पब्लिक के अगेंस्ट भी है. या जैसे को वर्वेंटो होता है, तो को वर्वेंटो का मतलब क्या होता है कि आपने किसी के ऑफिस को चार्ज किया है. फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंसिपल की पोस्ट पे पियोन बैठ के, तो यू कैन आस्क, तो उसमें अब एग्रीव्ड और नॉन एग्रीव्ड दोनों जा सकते हैं, ठीक है. इट इज समथिंग लाइक कि अब जैसे प्रेसिडेंट है, ठीक है, यू कांट क्वेश्चन द प्रेसिडेंट, बट अगेन यू कैन क्वेश्चन द पब्लिक अथॉरिटीज. सो यू हैव टू जस्ट रिवाइज दीज थिंग्स. ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा अच्छे से ना, यू हैव टू जस्ट लाइक मेक द टेबल और सम चार्ट फॉर दैट. अब मैंडामस है वो प्राइवेट के अगेंस्ट में नहीं यूज कर सकते आप, ठीक है. अब एक कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक
लाइक प्राइवेट एक कंपनी है, ठीक है, तो इफ दैट इज नॉट वर्किंग फॉर द गुड कॉज फॉर द सोसाइटी, सो यू कांट लाइक जाके आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते. CSR इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप उसे जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वाई यू पीपल आर नॉट डूइंग समथिंग फॉर अस. बट वेयरएज अगर आपकी सर्विसेज आपको नहीं मिल रही है, तो अब आपको समझ आ गया कि अगर आपको सर्विसेज नहीं मिली है तो यू कैन ऑब्वियसली क्वेश्चन द पब्लिक अथॉरिटीज, बट वेयरएज इन प्राइवेट यू कैन नॉट. तो मैंडेमस प्राइवेट के अगेंस्ट में नहीं यूज हो सकता. आई होप आई एम क्लियर. मैंने बता दिया, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये इतना डिटेल से मेंशन नहीं है. मेंस में पूछ सकता है, बट आपको इतना आइडिया है कि आप लिख दोगे. ये कोचिंग वाले पूछते हैं घुस के, यूपीएससी ने ऐसे नहीं पूछे, बट 2-3 बार पढ़ो तो याद हो जाएगा. अगर नहीं भी हो रहा तो इतना टेंशन नहीं लेने का. जो मैम बोल रहे हो इससे सफिशिएंट है. Okay. अच्छा, एक क्वेश्चन था, अगर मैं ऐसा बोलूं कि हु हैज द सोवरन पावर इन इंडिया, और उसमें 2-3 ऑप्शन दे रहा हूँ, तो प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट और पीपल ऑफ इंडिया, तो क्या होगा आंसर? पीपल ऑफ इंडिया. पीपल ऑफ इंडिया. हाँ जी सर, करेक्ट, पीपल ऑफ इंडिया. अच्छा, एक स्टेटमेंट है, तो ट्रू फॉल्स बताना. एन इम्पीचमेंट मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ जज डज नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. ट्रू और फॉल्स? False. आई एम सेइंग योर क्वेश्चन इज कि अगर सॉरी लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है तो वो लैप्स हो जाएगा बिल, मतलब जो के उसका है, वही पूछा ना आपने? हाँ. नहीं होगा, वो लैप्स नहीं होगा. ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? ओरिजिनेट कहाँ हुआ है बिल? हाँ, लैप्स नहीं होगा. ट्रू. हाँ, ओरिजिनेशन कहीं पे भी हो, मतलब उसका ओरिजिनेशन से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है ना, लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, बिकॉज इसमें वो नहीं है ना कि इसे होना लोकसभा से ही पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं होता ना इसमें, तो वो कहीं पे भी हो, बस जब नहीं. उसका लक्ष्मीकांत नहीं, में तो दिया तो है. उसमें जो मेंशन्ड है लक्ष्मीकांत में, वो ये है कि अ बिल ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा नॉट पास बाय लोकसभा आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा लैप्सेस. हाँ, अगर वो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है तो वो लैप्स नहीं होगा. एंड इफ इट, हाँ ये बात सही, वो जो बोल रहे हो कि अगर राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है एंड नॉट हैव बीन येट पास टू द लोकसभा एंड लोकसभा डिसॉल्व्स, देन इट डज नॉट लैप्स. ये वाली जो वो बात बिल से रिलेटेड है सर. ये इम्पीचमेंट प्रोसेस है ना इसका, ये एक तो प्रोसेस ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ऊपर से ना. हाँ, तो मतलब कोई कहीं पे भी ओरिजिनेट होगा ना तो वो लैप्स हो जाएगा अगर जजेस के केस में है. ये अलग से मेंशन है लक्ष्मीकांत में, इसी स्पेशल मतलब जजेस के केस के लिए. अरे लैप्स होगा कि नहीं? अभी आप पहले बोल रहे थे नहीं होगा, जो कर बोल रहे हो जाएगा. नहीं होगा लैप्स, नहीं होगा. वेट लेट मी क्लियर वन थिंग. सपोज कि कहाँ पे मेंशन है? ये सर जो पीछे नोट्स एंड रेफरेंसेस नहीं दिए होते हैं उसमें मेंशन है ना. ग्रे एरिया यूपीएससी पूछेगा. सर. उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो पीछे इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स एंड रेफरेंसेस. बेसिकली नोट्स एंड रेफरेंसेस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, लाइक इट टू योर रैप. आपको वो जो पीछे नोट्स एंड रेफरेंसेस दिए होते हैं, यू शुड जस्ट क्लिक ऑन दोज नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे लिखे होते हैं. सो कई बार ग्लेंस करना, उससे यू विल गेट मैनी मोर इन्फॉर्मेशन. सो ठीक है, लेकिन वो लैप्स नहीं होता है, ठीक है, वो लैप्स नहीं होता है, वो लोकसभा राज्यसभा आई डोंट थिंक वो लैप्स होता है. मतलब पहली बात तो प्रोविजन ही जो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दैट वुड बी मेंशन समवेयर अंडर द जजेस इंक्वायरी है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है. एंड ऑल्सो इट इज नॉट मेंशन कि वो लैप्स होता है. कहीं पे अगर आपको मिल जाए तो एक बार प्लीज जस्ट, है ना, वो आप एक बार शोकेस कर देना, विल चेकआउट की बाकी उसमें क्या एड ऑन हो सकता है, ठीक है. सो फॉर नाउ प्लीज मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अभी सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट। सुप्रीम प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट। इंडिया। सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जो ओथ है उसमें भी ऐसा लिखा है क्या, टू डिफेंड एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, नहीं, ये वो सिर्फ गवर्नर एंड गवर्नर के गोवा लिए। के लोग। हाँ, करेक्ट। इनके में सिर्फ यूं लिखा है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। ओके, जोकर प्लीज आस्क फ्रॉम द हाई कोर्ट नाउ। सुप्रीम कोर्ट बहुत हो गया ऑलरेडी, हाफ आवर से ज्यादा हो गया। जस्ट आस्क फ्रॉम द हाई कोर्ट, फिर रैप अप करते हैं। ओके। अच्छा, क्वालिफिकेशंस क्या है हाई कोर्ट के जज की? वही, वो सिटीजन होना चाहिए और उसका जो 10 इयर्स का जुडिशियल ऑफिस है वो होना चाहिए, प्लस एडवोकेट होना चाहिए 10 का। यहाँ पे दोनों 10-10 है, वहां पे एडवोकेट था 10 का एंड हाई कोर्ट का जज था 5 एंड सिटीजन था। एज वाला कोई भी कंसिडरेशन नहीं आएगा, दोनों में ही नहीं आएगा। हाँ, और एक एमिनेंट जूरिस्ट याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट में है वो, इस केस में है ही नहीं हाई कोर्ट में। वो वहां पे आएंगे, इसमें नहीं आते हाई कोर्ट में। हाँ, यस मैम। ये ओथ एंड अफर्मेशन किसके आगे लेते हैं हाई कोर्ट वाले? प्रेसिडेंट। गवर्नर। हाँ, गवर्नर। और इनका क्या कहते हैं, रेजिग्नेशन किसको जाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। हाँ, वो प्रेसिडेंट को जाता है। तो याद रखना, ओथ गवर्नर के आगे और रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट के पास। इन द केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओथ तो प्रेसिडेंट के आगे होगा एंड रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा, राइट? हाँ, यस मैम। सुप्रीम कोर्ट और What about the salary allowances and the pensions of the High Court? हाँ, वो पार्लियामेंट डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। Okay, and pension is charged upon the CFS, whereas salary is charged upon the CFI. True, false? फॉल्स, उल्टा। उल्टा, okay, correct. Then transfer of the judges का SC और HC दोनों में क्या सिस्टम है जजेस को ट्रांसफर करने का? कॉलेजियम में करते हैं। सी सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया का एक ही है ना, तो उसमें ट्रांसफर कैसे हो? हाई कोर्ट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे ट्रांसफर इज पॉसिबल। ओके, सो वहां पे नंबर इंक्रीज है, वो पार्लियामेंट करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ द जजेस को इंक्रीज करता है प्रेसिडेंट। वहां पे ट्रांसफर नहीं हो सकता, यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है एंड दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट हियर। ठीक है, प्रेसिडेंट डू विद द हेल्प और विद द कंसल्टेशन ऑफ द सीजीआई। हाई कोर्ट में PIL फाइल कर सकते हैं। हाँ सर, यस। और हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। हाँ जी सर, यस। ओके सर, करेक्ट है। अच्छा, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन और इसके सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में एक कौन सा एक डिफरेंस है? जैसे उसके पास ओरिजिनल है, एपिलेट है, एडवाइजरी है, इसके पास क्या एक्स्ट्रा है? एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के पास है, whereas हाई कोर्ट डजंट हैव एनी एडवाइजरी jurisdiction. हाँ, उसकी जगह इसके पास एक सुपरवाइजरी एक्स्ट्रा आ गई।
कितने हैं? 25, 26, 27 तीनों से। 25। ठीक है सर, करेक्ट। कहाँ से पढ़ा, मतलब लक्ष्मीकांत में है ये? एक ये तेलंगाना वाला सर। अर्लियर देयर वर 24 ना, लेटेस्ट जो जुड़ा था वो तेलंगाना वाला था, राइट? हाँ हाँ करेक्ट। So at present there are 25 at sea. And what about the UTs जिनके पास खुद का हाई कोर्ट है? दिल्ली। UTs है? दिल्ली। हाँ ओनली दिल्ली है। Yeah, okay, so only Delhi plus only 25 high courts are there in India. Anything else from the high court? वो कौन कौन से हाई कोर्ट हैं, ये कितने हाई कोर्ट हैं जिसका जुरिडिक्शन मोर देन वन स्टेट में है? ये हाँ 2008 चंडीगढ़ का एक पहला। क्वेश्चन है। 5 हाई कोर्ट होना चाहिए। 3 है, एक गुवाहाटी, बॉम्बे और फिर वही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़। हाँ हाँ राइट। कैलकाटा हाई कोर्ट भी है। कलकत्ता हाई कोर्ट हाँ भी। कोलकाता भी है नहीं, ना वो एक। यूटी के लिए है ना, कोलकाता वाला तो यूटी के लिए है, वो जो अंडमान हाँ सिर्फ निकोबार। स्टेट के लिए पूछा जाए तो वही बस है। हाँ 3। स्टेट के लिए बस 3 है। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि Calcutta, Bombay, Madras, Delhi high courts have original civil jurisdiction in cases of higher value. True or false? ट्रू। ट्रू। हाँ जी सर, ट्रू। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, मतलब ये मतलब क्या है इसका? ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ हायर वैल्यू। ऐसा तो पता नहीं सर, इसमें मतलब ऐसे लिखा है कि केसेस ऑफ हायर वैल्यू उनमें है। अब हायर वैल्यू को पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो पता नहीं। ओके ठीक। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट है? Like judicial review limited है in which sense you are asking? ये बस सिंपल स्टेटमेंट है कि स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड फॉर सुप्रीम कोर्ट। No. सर लिमिटेड है क्योंकि वो जो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं बस वो बेसिक स्ट्रक्चर और ह्यूज साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सब लिमिट करता है। आई डोंट नो, बट आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को तो वैसे भी वो नहीं कर सकती है, ठीक है, तो इससे लिमिटेड का क्या? हाँ, दो यूएस से अगर ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता दैट इंडियन जो जुडिशियल रिव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू द अमेरिका वाला, तो ये स्टेटमेंट ठीक था, बिल्कुल सही हो जाता, बट इन विच सेंस यू वर आस्किंग, आई कुडंट गेट एक्चुअली। ठीक है। देयर इज वन स्टेटमेंट, सपोज जो सेशन कोर्ट होते हैं, ठीक है, उन्होंने कोई कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन दिया है, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन दिया है, सो इज देयर एनी नीड टू गेट इट सर्टिफाइड फ्रॉम लाइक जो हाई कोर्ट है उनसे कंफर्म करना इज कंपल्सरी, और दे कैन जस्ट एग्जीक्यूट इट डायरेक्टली विदाउट एनी कंफर्मेशन? कंपल्सरी है, हाई कोर्ट। या करेक्ट, ओके, सो उसका कंफर्मेशन लेना इज इम्पोर्टेंट।
अच्छा, ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज आर ये स्टैट्यूटरी बॉडीज, ट्रू और फॉल्स? NLS ट्रू। से ना 1987 से बने थे। हाँ, करेक्ट। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है कि लोक अदालत फॉर्म बाय द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। हाँ, ये भी ट्रू है सर। हाँ जी सर, ट्रू। सर एक और स्टेटमेंट है, लॉ कमीशन हैज एडवोकेट that 1/3 of judge in each high court should be from another state. ये ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू होगा। हाँ सर, करेक्ट, ट्रू है। वो जस्टिस HR खन्ना थे जब लॉ कमीशन के हेड, तो उन्होंने किया था। Constitution of India has mentioned 2 grounds for the removal of judge. True or false? ट्रू। ट्रू है, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। Okay, and the both of the grounds are which one? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। Okay, the next question is followed by this discussion only. Both of the grounds, misbehavior and incapacity, are defined by the Constitution of India. फॉल्स है, ये जो क्वेरी एक्ट उसके लिए है। Yes, okay, so this statement is false. Anything remain from this chapter? Now let us discuss those 3 judges case जो Supreme Court का आया था. So anyone can explain Supreme Court के जो 3 judges case आया था? What was the first judge case? उसमें कहा था कि मतलब कंसल्टेशन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बाइंडिंग भी नहीं है। Okay, then what about the second judge case? उसमें बाइंडिंग कर दिया था प्रेसिडेंट के ऊपर कंसल्टेशन को। और third judge case? हाँ, थर्ड जज केस में वो कर दिया था, मतलब बाइंडिंग ही करा था, लेकिन उसमें मेंबर्स बढ़ा दिए थे, 4 कर दिए थे। Yeah, correct. Okay, so first में सिर्फ व्यूज एक्सचेंज होंगे, सेकंड में उनको बाइंडिंग कर दिया था, एंड थर्ड में क्या क्या था? बाइंडिंग तो था ही, 4 जजेस उसमें ना, लाइक उसमें बढ़ा दिए थे 4 जजेस। Contempt of court is defined by the Constitution. True, false? ट्रू। False. Okay, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो डिफाइंड नहीं है, बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था 1971 में, सो दैट मेड इट लाइक उसने फिर आगे जाके उसको बाइफरकेट कर दिया 2 में, सिविल एंड क्रिमिनल एंड सो ऑन। जो कॉलेजियम होता है उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? मतलब कॉलेजियम इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी? अभी तो 4 है शायद। इसको 4 बोलेंगे या 5? क्योंकि एक जो CGI भी होता है ना 4 के अलावे। अब उसमें ना ऐसा हो जाता है 4J + 1 CJ, ठीक है, तो 4 जजेस ना 1 CJ आ जाते हैं ना उसमें, और फिर उसके बाद ओके। प्रेसिडेंट तो अलग रही, क्या प्रेसिडेंट का भी कंसल्टेशन लगता है।
Okay, last one is subordinate court. So who appoints the district judge? Governor. Yes, with the consultation of High Court. Okay, so the district judges are appointed by the governor with the consultation of the High Court. And if I talk about the other judges other than the district judge, then they are appointed by the governor, but the consultation is made with the State Public Service Commission. ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है डीजे बोलते हैं जिसको, तो डीजे जो होता है गवर्नर से अपॉइंट होता है एंड हाई कोर्ट का उसमें लगता है, एंड अदर जजेस का डीजे सॉरी दैट गवर्नर प्लस SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. Okay, so we are done with the Supreme Court, High Court and all miscellaneous topic related to the Supreme Court. Thanks a lot.